Hello students, hope you are all right. So let's start our today's block. Today we are going to start block 3, that is summarizing a fiction text. Fiction text is imaginary text, means that is not real. So lesson plan 1 is here, key details, and aim is you will be able to differentiate between key details and minor details. आज आप सीखेंगे कि की डिटेल्स क्या होती हैं, माइनर डिटेल्स क्या होती हैं और आप उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. सो की डिटेल्स आर दोज डिटेल्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी. की डिटेल्स वो डिटेल्स होती हैं जो किसी भी स्टोरी को समझने के लिए ज़रूरी होती हैं. माइनर डिटेल्स आर दोज डिटेल्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टोरी. जो डिटेल्स स्टोरी को समझने के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं वो माइनर डिटेल्स होती हैं. सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई की डिटेल्स एंड माइनर डिटेल्स. Key details, important details, minor details, unimportant details. So open your Exceed content book to A Boy's Love for a Sparrow, that is block 3, and we will look for the key details and minor details in the story while reading. So अब लेसन पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कौन सी की डिटेल्स हैं, कौन सी माइनर डिटेल्स हैं. So A Boy's Love for a Sparrow, summarizing a fiction text, and block 3. So, A Boy's Love for a Sparrow. There is a boy in the story whose name is Hira Lal, जिसका नाम हीरा लाल है, and he loves the sparrow very much. So, let's read the story. What happens in it? High above the ground, on its giant towers, the power line ran across the flat and unchanging countryside. One great electricity pole was guarded in a square patch, fenced off with barbed wire. Warning plates in red paint said danger. There was a huge figure of thousands of volts painted beside it. It was near 11-year-old Hira Lal's hut. He knew volts were electricity and the line carried power across the country. जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, हीरा लाल एक बॉय है और सामने विंडो के बाहर एक टावर नज़र आ रहा है. ये इलेक्ट्रिक पोल्स का टावर है और वहाँ पे जो है रेड पेंट से डेंजर लिखा हुआ है. और ये हीरा लाल की हट के बाहर था और हीरा लाल को पता था कि ये जो लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक टावर्स हैं और यहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है कंट्री में. Hira Lal, filled with the empty hours of his day imagining things, the power line took his thoughts into a magical distance far away among the tall buildings and bustling towns. Bustling towns means full of people moving around busily. Hira Lal loved the power line deadly. He spent hours imagining where all it went and what all it saw. So हीरा लाल जो अपना खाली टाइम होता था चीज़ों को इमेजिन करने में बिताता था और जो ये पावर लाइन है उसकी जो इमेजिनेशन को मैजिकल डिस्टेंस में ले जाती थी और बिल्डिंग्स को देखता रहता था और जो टाउन से लोगों से भरे होते थे उनको देखता रहता था. हीरा लाल को जो पावर लाइन है बहुत पसंद थी, वो बहुत प्यार करता था इनसे और अपने जो आस थे, जो टाइम था, वो इन्हीं में बिताता था. On clear evening, when the sparrows gathered, he would see the wires like necklace of glass beads. He loves to hear the birds making excited twittering sound and watched interestedly how they fell off the aluminium wire into space. The birds could fly anywhere they wanted. He liked them too. शाम को क्या होता था कि स्पैरोज गैदर हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी. वो जो टावर वहाँ पे था, वायर्स पे आके वहाँ बैठ जाती थी. ऐसा लगता था जैसे ग्लास के शीशे के मोतियों का नेकलेस बना हुआ हो और वो उसको अच्छा लगता था जब ये ट्विटरिंग साउंड बर्ड्स करते थे उन्हें सुनना. वो उन्हें इंटरेस्टेडली देखता था कि कैसे मतलब इस टावर से ये स्पेस में, आकाश में उड़ गए हैं बर्ड्स. और बर्ड्स कहीं भी उड़ सकते थे जहाँ इन्हें जाना होता था. वन मॉर्निंग एज ही वॉज टेकिंग ऑफ and occasionally coming back on the power lines, he noticed that one of the sparrows got trapped. It was hanging from the wire and flapped its wings widely. He wondered how it got caught. Maybe it was the wire binding or the joint. He thought to himself he wanted to rush and tell his mother, but she would scold him for being late for school. So he climbed on his bicycle and rode off to school. वन मॉर्निंग उसने देखा कि स्पैरोज जो हैं टेक ऑफ कर रही हैं वहाँ से, पॉल पे से, और कभी पावर लाइन पे वापस आ रही हैं, कभी वो पावर लाइन पे वापस आ रही हैं. उसने देखा कि जो एक स्पैरो है वो वहाँ पे ट्रैप हो गई है, फंस गई है और वो वायर से लटकी हुई थी, अपने विंग्स को फ्लैप कर रही थी.
देखा, वो बेचारा सोच में पड़ गया कि ये यहाँ कैसे ट्रैप हो गई है, कैसे फंस गई है, शायद वायर में कुछ फंस गई है या जॉइंट में। उसने खुद सोचा, वो भाग के मम्मी को बताना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मम्मी स्कोल्ड करेंगी, डांटेंगी, स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो साइकिल पे चढ़ा और स्कूल चला गया। कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल ही फेल्ट एंक्शियस बट डिड नॉट लुक अप until he was quite near. The sparrow was still there, its wings spread but not moving. It was dead, he guessed sadly. Then he saw it fluffing and fold its wings. He felt awful thinking about it hanging there all day. Awful means very sad. So जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो उसे बड़ी चिंता हुई। उसने ऊपर नहीं देखा जब तक वो पहुंच गया पास में। स्पैरो वहीं पे थी अभी भी और अपने विंग्स मूव नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था ये डेड हो गई है ये। एंड फिर उसने देखा कि थोड़े से फ्लटर कर रहे हैं विंग्स। उसे बहुत बुरा लगा सोच के कि ये बेचारी पूरे दिन से यहाँ लटकी हुई है। So the boy went in and told his mother about the bird. They stood below the power line and looked up at it together. The mother shaded her eyes with her hand. It's a pity, she said, but she was sure it would free itself somehow. वो जो बॉय था वो अंदर गया, उसने मम्मी को बताया। उन लोगों ने खड़े होकर वहाँ पे देखा, मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा बहुत ही बुरा लग रहा है सब देख के, लेकिन उन्हें पता था कि ये एक दिन खुद ही अपने आप यहाँ से फ्री हो जाएगा ये बर्ड। कुडंट ही बिगेन, उसने बोला हीरालाल ने कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। नो कुडंट, शी सेड फॉर्मली। इन अ वे ही न्यू दैट देयर वाज नो पॉइंट आर्ग्यूइंग। उन्हें पता था कि बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। व्हेन हिज फादर केम होम इन द इवनिंग ही फॉलोड हिम एंड सून स्पोक टू हिम अबाउट हिम। जब शाम को पापा आए तो हीरालाल ने पापा को बताया इसके बारे में। आई नो हिज फादर सेड योर मदर टोल्ड मी। पापा बोले मुझे पता है तुम्हारी मम्मी ने बताया था। इट्स स्टिल देयर, ये अभी भी वहाँ है। वेल हिज फादर सेड एंड लुक्ड एट हिम हार्ड विद हिज शार्प ब्लैक आइज। वेल वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, कैन वी? उन्होंने बोला बेटा ठीक है, लेकिन वो बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखने लगे और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फादर बट वट, अब वो पापा से कह रहा पापा लेकिन, पापा कह रहे हैं लेकिन क्या लेकिन? ही किक्ड एट अ स्टोन एंड सेड नथिंग मोर। उसने एक पत्थर फेंका और उसने कुछ नहीं बोला। एट डिनर नन ऑफ देम टॉक्ड अबाउट द स्पैरो। डिनर के टाइम किसी ने भी स्पैरो के बारे में बात नहीं की। बट हीरालाल फेल्ट एज इफ इट वर हैंगिंग अबव द हेड्स। हीरालाल को ऐसा फील हो रहा था वो अभी भी वहाँ पे हैंग कर रही है। वाइल पुटिंग हिम टू बेड हिज मदर सेड, जब मम्मी उसको सुला रही थी मम्मी ने बोला बेटा यू मस्ट नॉट वरी अबाउट द बर्ड, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। गॉड विल लुक आफ्टर इट, भगवान इसकी देखभाल खुद करेगा, भगवान देख लेंगे जो होना है, सब अच्छा होगा। सो वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इन द नेक्स्ट लेक्चर. So what are the key details in the story so far, and what are some of the minor details, and what is the main idea of the story so far? So you have read the story, आप लोगों ने स्टोरी पढ़ ली है और अभी देखते हैं कि कौन सी की डिटेल्स हैं और कौन सी माइनर डिटेल्स हैं, मेन आइडिया क्या है स्टोरी का. Key details, as I told you earlier, that key details are the most important details in the story that help to understand the story. So Hiralal is an 11-year-old boy who lives in a village that has giant towers with power lines running beside it. Hiralal sees a bird trapped in the power line and wants to rescue it. सो इम्पोर्टेंट डिटेल्स क्या है इसमें कि हीरालाल एक 11 ईयर्स का बॉय है और जो विलेज में रहता है जहाँ पे एक बड़ा सा टावर है जहाँ पावर लाइंस हैं, और हीरालाल एक बर्ड को देखता है वहाँ पे फंसा हुआ है पावर लाइन में, वो उसको वहाँ से रेस्क्यू करना चाहता है, बचाना चाहता है. He requests his parents to help him rescue the bird, but both tell him not to bother about it, turn down his request. वो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है कि इस बर्ड को रेस्क्यू करने में उसकी हेल्प करें, लेकिन दोनों ही इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते. उसे कहते हैं बेटा तुम परेशान मत हो, भगवान अपने आप देख लेंगे. एंड some of the minor details are the description of the electricity poles and towers. The boy knew what volts were, how he spent his days imagining like, and how exactly the bird might have been trapped. The main idea of the story so far is that a bird is trapped in that power line and is struggling to free itself, and nobody except the boy seems to care. सो माइनर डिटेल्स हैं, जैसे पावर लाइन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको पता है कि वोल्ट्स क्या होते हैं, तो ये सब अननेसेसरी डिटेल्स हैं. अगर ये स्टोरी में ना भी मेंशन की जाए तो स्टोरी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड माइनर डिटेल्स.
और मेन आइडिया है कि बर्ड जो है ट्रैप है, फंसा हुआ है और अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉय को छोड़ के कोई भी परवाह नहीं कर रहा है. सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द की डिटेल्स एंड माइनर डिटेल्स. आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं की डिटेल्स को और माइनर डिटेल्स. We can identify the key details looking for the main characters, the setting and the main problem, actions taken to solve the problem and the solution. The key details answer who, where, when, what and how questions about the story. The details that were less important and did not affect our understanding of the story were the minor details. For example, the description of the power lines as looking like necklace of glass beads doesn't affect our understanding of the story in any way, therefore it is a minor detail. सो जो एक्शंस होते हैं, करेक्टर होते हैं, सेटिंग होती हैं एंड जो प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन होता है. की डिटेल्स कौन से क्वेश्चन का आंसर करती है, लाइक हु, किसके बारे में बात हो रही है, वेयर, सेटिंग कहाँ की है, व्हेन, एक्शन कब हुआ है, एंड व्हाट, क्या हुआ है, एंड हाउ क्वेश्चन. सो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में जो बात होती है वो की डिटेल्स होती हैं. सो द डिटेल्स ऑफ जो लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं जिनसे स्टोरी के अंडरस्टैंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो माइनर डिटेल्स होती हैं. जैसे जो पावर लाइंस का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, लाइक नेकलेस ऑफ ग्लास बीड्स, सो इससे स्टोरी अंडरस्टैंडिंग पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है. दैट्स वाई दे आर माइनर डिटेल्स. विच डिटेल्स इन द स्टोरी वर रिपीटेटिव एंड वाई. कौन सी जो डिटेल्स थी स्टोरी में वो रिपीटेटिव थी, बार बार रिपीट हो रही थी, और क्यों. How Hiralal felt about the bird is told to us many times. We are told that he felt awful, anxious, and finally frustrated when his parents were unwilling to help the poor bird. The author repeated these details to emphasize this idea, but that runs through the dialogue. So हीरालाल को कैसा फील हो रहा था, वो awful फील कर रहा था, anxious, परेशानी हो रही थी, फ्रस्ट्रेटेड, उसे गुस्सा आ रहा था. ये लाइन्स हमें बार बार रिपीट की गई हैं और वो बर्ड की हेल्प करना चाह रहा था. ऑथर ने ये लाइन्स इसलिए रिपीट की हैं क्योंकि जो स्टोरी का जो मेन आइडिया है उस पर एम्फेसाइज किया जा सके, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके कि देयर वॉज अ बर्ड विच वॉज ट्रैप्ड इन द power lines of a tower and the boy wanted to rescue it somehow. So now let's do a workbook. Now take out your workbook at page number 17 and S1 key details. Now let's have a look at it and let's read the part. Read the paragraph from A Boy's Love for a Sparrow. Answer the questions that follow. इस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और क्वेश्चंस का आंसर करना है. He spent the morning hours building a mud house under a tree. वो अपना जो मॉर्निंग का टाइम था वो एक ट्री के नीचे मड हाउस बनाने में स्पेंड करता था. While coming at the midday, he looked up one more time. एक बार और वो ऊपर की तरफ देखता था. What he saw kept him standing there for a long time with his mouth open. और जो वो देखता था, माउथ ओपन करके देखता ही रहता था, उसे बड़ी हैरानी होती थी, बड़ा सरप्राइज होता था वो. The other sparrows were hovering around the trapped bird. Hovering means staying at a one place. So जो trapped bird था, जो फंसा हुआ बर्ड था, उसके चारों तरफ दूसरी स्पैरोज इकट्ठा होती रहती थी and trying to help it, और उसकी हेल्प करना चाहती थी. He rushed inside and dragged his mother out. वो अंदर गया और मम्मी को बाहर लेके आया. She looked up, shedding her eyes again. तो मम्मी ने आंसू पोंछते हुए दोबारा ऊपर देखा. यस, दे आर ट्राइंग टू हेल्प द ट्रैप बर्ड. इजंट दैट स्ट्रेंज. यस, वो बर्ड को बचाने की कोशिश कर रही है, क्या ये अजीब नहीं है. शी सेड, मम्मी ने बोला. इन द आफ्टरनून हीरालाल ले ऑन द ग्रास एंड फेल्ट चॉक्ड थिंकिंग अबाउट हाउ द अदर स्पैरोज वर हेल्पिंग द बर्ड एंड हाउ Nobody else was bothered to do anything about it. जब वो दोपहर को वहाँ ग्रास पे लेटा हुआ था तो उसने देखा कैसे दूसरे बर्ड उसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है बर्ड को रेस्क्यू करने की, और उसे बहुत बुरा फील हो रहा था. He traced the way a climber could get up the tower. उसने सोचा कि एक क्लाइंबर अगर कोई चढ़ जाए ऊपर यहाँ पे टावर पे तो इसको रेस्क्यू कर सकते हैं. Even if you got up there, How would you touch the sparrow? अगर तुम चढ़ भी गए तो तुम कैसे स्पैरो को टच करोगे. Those thousands of wolves would jump at you just putting your hand near the wire.
the only thing that could be done was to get somebody to turn off the power for a minute. Then he could climb the tower like a monkey and bring down the bird in a jiffy. In a jiffy means in a moment. At dinner that night, when he suggested it, his father became very angry. अब वो सोच रहा है अगर कोई टावर पे चढ़ के इस बर्ड को नीचे उतार दे तो ये रेस्क्यू हो सकता है. उसने सोचा कि अगर मैं इसके ऊपर गया तो करंट वगैरह यहाँ पे लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक. सो उसने सोचा मैं किसी को ले आऊँ तो हेल्प हो जाएगी. और डिनर पे उसने पापा से डिस्कस किया, लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया. एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए. सो हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द पैराग्राफ? सो द मेन कैरेक्टर्स इन द पैराग्राफ्स आर Hiralal, his mother and father. What is the setting of the scene? Setting is outside the house of the Hiralal. Underline the key details and strike out minor details in the extract. अब आपको अंडरलाइन करनी की डिटेल्स. मेन डिटेल्स कौन सी हैं और माइनर डिटेल्स इसमें कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है. यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इट. एंड विच डिटेल्स इन द पैराग्राफ आर रिपीटेटिव? कौन सी डिटेल्स रिपीटेट हुई हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं. जैसे सेकेंड लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट ही सो केप्ट हिम स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विद माउथ ओपन. एंड फिर यहाँ पे नीचे फिर से लिखा हुआ है ही फेल्ट चॉक्ड थिंकिंग अबाउट द अदर स्पैरोज. सो यहाँ पे बार बार यही बताने की कोशिश की गई है कि हाउ हीरालाल फेल्ट अबाउट द ट्रैप बर्ड, हाउ स्ट्रोंगली ही फेल्ट टू रेस्क्यू द बर्ड, कि कितनी कोशिश की उसने बर्ड को बचाने की. सो द लाइन्स ऑफ फीलिंग्स ऑफ हीरालाल्स आर रिपीटेटिव. सो स्टूडेंट्स, आई होप you can understand the topic very well and you can complete the S1. So complete S1. Have a nice day.